we all are going to practice today. The topic name is the partogram. Okay, was it graphical representation or graphical record of the key data? तो हमें shingle seed, this is our WHO modified partogram. Mainly 5 components हैं. प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड डिसेंट ऑफ हेड की बात करेंगे. यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे डिसलरेशन हो रहा है या एसिलरेशन. स्टैंड फॉर क्लियर. सी इज स्टैंड फॉर क्लियर. ब्लड के लिए हम मेंशन करेंगे बी आई से, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड. ओके. Good morning, my dear lovely students. I am your Obs and Gynae faculty on Amrit Gyan platform. Today I am here with you all with a very interesting topic, which is I am not going to teach you. While we all are going to practice today this topic on hand. Okay, so let's start the practice togetherly. So the topic name is the partogram. Okay, partogram. Yes. So what is partogram? Partogram is a single sheet paper. ये एक सिंगल शीट पेपर है जिसमें हम सारे इवेंट्स जो भी लेबर के टाइम पर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो रहे हैं इन WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राम की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हम जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इन द मैटरनल बॉडी और जो भी चेंजेस हो रहे हैं फीटस में वो सारे हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. So we can say that it is a composite graphical representation or graphical record of the key data which is related to mother and the fetus during the labor is entered against the time duration on a single sheet of paper. एक सिंगल शीट पर हम जितना भी डेटा है मदर से रिलेटेड फीटस से रिलेटेड उस सबको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, what are the advantages of partogram? एडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस क्या होती हैं कि ये जो पार्टोग्राम है एक तो हमें सिंगल सीट पर पूरे लेबर का डेटा प्रोवाइड करता है. दूसरा, व्हेन यू आर इन द क्लिनिकल ड्यूटीज़ एंड इफ़ देयर इज़ द चेंजिंग ऑफ द ड्यूटी, जो नेक्स्ट स्टाफ आ रहा है उसको ये पूरा डिटेल देने में हेल्पफुल होता है. ठीक है. Next, it also help in to take the appropriate action on the appropriate time during the labor. ठीक है. For example, अगर कोई भी deviations है from the normal labor, so it will tell us that it is the proper time to take the appropriate action. Also, it also help in reducing the maternal morbidity or intramaternal morbidity or the mortality rate. Okay. So let's discuss that. Let's practice how to fill or how to plot all the events, all the data in the partogram. Okay. So before going to start the partograph, let's revise the phases of the labor. Phases क्या हैं labor की? Phases of labor. So how many phases are there? There are total 4 stages of labor. There are 4 stages of labor. In that we will discuss that first stage of labor. First stage of labor, first stage is divided into 2, that is latent phase and active phase. Latent phase and active phase. Okay. So latent phase की अगर हम बात करें, so latent phase it begins with the true labor pain and ends with the 5 centimeter of cervical dilatation. According to the new data, it begins with the true labor pain and ends with the 5 centimeter of dilatation. Begins with true labor pain means जब फीमेल को लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए and ends with the more than or at 5 centimeter cervical dilatation.
ओके, नेक्स्ट इज दी एक्टिव फेज। अब हम बात करते हैं एक्टिव फेज की। सो एक्टिव फेज स्टार्ट्स विद दी 5 centimeter, begins at the 5 centimeter and ends at the full dilatation of the cervix. Full dilatation is the 10 centimeter. Yes, so it begins with 5 centimeter dilatation and ends at the 10 centimeter of cervical dilatation. Yes, understood this much? So latent phase begins with the true labor pain and ends with the 5 centimeter of dilatation, and active phase begins with the 5 centimeter dilatation and ends with the 10 centimeter of cervical dilatation. Next is the second stage of labor. So second stage कब start होता है? It is the period of time between the full cervical dilatation and the birth of the baby. Okay, so period of time between full cervical dilatation and birth of the baby. Okay, and third stage is begins with after the delivery of the baby and ends with the delivery of placenta. Okay, begins with delivery of baby and ends with placental delivery. Okay, and the fourth stage, it is the recovery stage of 1 to 2 hour. Fourth stage, so it is the इसमें मदर को हम 1 to 2 आवर के लिए पोस्ट नेटल वार्ड में हम रखते हैं ताकि हम असेस कर सकें दैट द मदर इज़ रिकवरिंग प्रॉपरली और नॉर्मली. ठीक है, कोई ऐसे पोस्टमार्टम की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. सो दिस इज़ द रिकवरी स्टेज. ओके, सो लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द पार्टोग्राम. सो दीज आर द phases or we can say the stages of labor. Yes, अब हम बात करेंगे पार्टोग्राम की. दिस इज आर WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राम. ठीक है, इसमें हमारे मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, जिसमें रहता है पहले मदर्स बायोडेटा रहेगा. फीटल वेलबिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पर ऊपर मदर का बायोडेटा रहता है. ठीक है, देन हम फीटल वेलबिंग की बात करेंगे. देन हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड डिसेंट ऑफ हेड की बात करेंगे. देन मैटरनल वेलबिंग. ओके, so these are the main 5 components are explained or we can plot it. We have to plot in the modified WHO partogram. So let's one by one discuss in detail. So अगर हम बात करें पेशेंट डिटेल की, फर्स्ट इज द पेशेंट डिटेल. सो पेशेंट डिटेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेम ऑफ द पेशेंट. यस. नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन आता है DOA. नेक्स्ट ग्रेविडा मीन्स ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर हमें इसमें प्लॉट करना है, मेंशन करना है दैट ग्रेविडा कितना है. अगर मदर
सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसने सेकेंड टाइम कंसीव किया है और उसकी प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक्स है, ग्रेविडा में हम सारी प्रेगनेंसीज काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइम शी हैज़ कंसीव। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शी इज़ प्रेग्नेंट और शी हैज़ कंसीव एट द सेकेंड टाइम, तो जी क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। देन हम मेंशन करेंगे पैरा, तो पैरा में कितनी डिलीवरीज है, अगर G2 है तो ऑब्वियसली एक ही बार वो डिलीवर हुई होगी, तो पैरा 1 आ जाएगा, ठीक है, यस। देन आता है हॉस्पिटल नंबर, हॉस्पिटल नंबर एक CR नंबर या सीरियल नंबर या कुछ भी जो अवेलेबल रहता है पेशेंट के एडमिशन के टाइम पर, उसके एडमिशन पेपर पर। देन टाइम ऑफ एडमिशन, this is also necessary here, and we will also mention that the rupture of membrane, status of the membranes, ठीक है, rupture of membrane कि वो किस टाइम पर मेम्ब्रेन रप्चर हुई है या नहीं हुई है। अगर इंटैक्ट है तो आई हम मेंशन कर देंगे, और अगर रप्चर हो गई है तो उसमें आवर्स हम मेंशन करते हैं या टाइम हम मेंशन करते हैं कि किस टाइम पर मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई है, ओके। So this is the first block we have completed. In that patient details में patient detail के अंदर आएगा name, date of admission, gravida and parity, hospital number, time of admission and membrane, status of the membrane, okay. I hope this is clear to you. Next is the fetal heart rate, okay. So fetal heart rate, normal fetal heart rate कितना होता है हमारा, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है 110 to 160 बीट्स पर मिनट, यस 110 to 160। अब इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं बेटा, दिस इज द 30 मिनट, ये कितने मिनट्स का होता है, ये 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। स्मॉल बॉक्स इज 30 मिनट का होता है। तो FHR इज बीइंग मेजर्ड एंड प्लॉटेड बाय द सर्कल। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, सर्कल पे। फॉर एग्जाम्पल मदर आई है लेबर में और उसके बेबी की जो हार्ट रेट है आपने मेज़र किया स्टेथोस्कोप से या फिर कार्डियोटोकोग्राफी से, तो आपको मिली 130, ठीक है। जब पेशेंट आपके पास आई तो यहाँ पर आपको 130 मिला है, तो आप यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट आपने 30 मिनट्स के बाद में फिर से मेज़र किया, तब आपको मिला है 140 पे, यस आप फिर से मेंशन कर देंगे। देन आपको मिला है 120 पे। आफ्टर दैट इतना प्लॉट करने के बाद में आप इसको ज्वाइन करेंगे विद दी लाइन्स, ओके। सो लाइकवाइज यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे डिसलेरेशन हो रहा है या एसिलेरेशन हो रहा है, ठीक है, इन दी फीटल हार्ट रेट, ओके। सो हियर व्हेन लो रिस्क वुमेन इज इन एक्टिव लेबर द FSH इज मॉनिटर्ड एवरी हाफ आवर। अगर लो रिस्क वुमेन है तब हम उस हार्ट रेट को कैसे चेक करेंगे, हाफ आवरली। अगर वुमेन में रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क वुमेन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग इज 15 मिनट इन दी एक्टिव लेबर। तब हम एवरी 15 मिनट पे FSH को चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट फर्दर, नेक्स्ट इज द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो फर्दर वी विल सी द स्टेटस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या करते हैं, मेंशन करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, तो जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पर हम चेक करते हैं अपनी फिंगर्स को, अपने हाथ को, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड हमारे हाथ पर लगा है वो किस कलर का है। अगर ये क्लियर है तो क्लियर में हम मेंशन करते हैं C। C इज स्टैंड फॉर क्लियर, C इज स्टैंड फॉर क्लियर। एंड अगर ये मिकोनियम स्टेन्ड है या ब्लड स्टेन्ड है तो ब्लड के लिए हम मेंशन करेंगे B, ओके, इफ इट इज ब्लड स्टेन्ड। इफ इट इज मिकोनियम स्टेन्ड देन वी विल राइट दी M, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दी M, ओके। अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं तब हम क्या करेंगे, इसको मेंशन करेंगे I से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I से, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दी कलर ऑफ दी एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। दिस मच क्लियर। अभी हमने FSH पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन डेटा मीन्स बायोडेटा ऑफ द मदर, देन फीटल हार्ट रेट हमने समझ लिया, देन
हमने एमनियोटिक फ्लूइड को समझ लिया। नेक्स्ट इज दी मोल्डिंग। ओके, यस, मोल्डिंग। अब हम अगर मोल्डिंग की बात करें तो मोल्डिंग क्या है? मोल्डिंग इज बेसिकली इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन्स। स्कल बोन की ओवरलैपिंग भी हम कैसे करते हैं? ड्यूरिंग दी परवजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टोन के थ्रू। एक शॉर्ट फॉर्म हम करते हैं STON। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो पर होगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। ठीक है, जीरो का मतलब है सेपरेटेड, S फॉर सेपरेटेड। सेपरेटेड मीन्स जो सूचर्स हैं, जो बोन्स हैं, फीटल बोन्स, उनकी कोई भी अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, दे आर सेपरेटेड। यस, देन +1 इज दी टचिंग, मीन्स द बोथ द बोन्स टचिंग टू ईच अदर। ठीक है, देन इज द ओवरलैपिंग, O फॉर ओवरलैपिंग। Overlapping means they are overlapping each other. And last one is the not reducible. Not reducible. Not reducible means यहाँ पर ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन ये रिड्यूसिबल है, मतलब कि ये हो सकता है कि अभी ये रिड्यूस हो जाए इनकी ओवरलैपिंग, बट अगर ये +3 पर है, नॉट रिड्यूसिबल है, तो हम इनको +3 बोलेंगे। ठीक है, सो लाइकवाइज वी विल प्लॉट दी मोल्डिंग ऑफ दी ओवरलैपिंग। ठीक है, मोल्डिंग में हम कैसे करेंगे? अगर सेपरेटेड है तो हम 0 को प्लॉट कर देंगे, अगर इट इज टचिंग टू ईच अदर तो हम 1 प्लस को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, लाइकवाइज वी विल प्लॉट दी मोल्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सर्वाइकल डायलिटेशन की और here cervical dilatation and descent of the head. Yes, okay, so cervical dilatation, here you can see that progress of labor, so it assists in terms of the dilatation of the cervix, descent of the head as well as the contractions of the uterus. ठीक है, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? cervical dilatation, descent of the head and uterine contractions. ठीक है, अब cervical dilatation की बात करते हैं तो based on the old WHO guidelines, according to this the active phase begins at the 4 centimeter. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से इन्होंने अलर्ट लाइन को दिया है। ठीक है, तो जो एक्टिव फेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हमारी 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड मिनिमम डायलिटेशन इन द एक्टिव फेज इज 1 सेंटीमीटर पर आवर। जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है मिनिमम 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज द, सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर 2 लाइन्स, एक हमारी अलर्ट लाइन है, एक एक्शन लाइन है, 2 लाइन्स हैं और इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन दे रखा है दैट इज 4 आवर। ये कितने? 4 आवर का है। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द एक्शन लाइन एंड अलर्ट लाइन बिटवीन टू दीज लाइन्स, दिस इज 4 आवर. ठीक है, the time is 4 hour. Now the dilatation of cervix, one more important thing is the dilatation of cervix is always plotted on the y axis. ये हम हमेशा y axis पर प्लॉट करते हैं और जो टाइम है वो हम हमेशा x axis पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, हमेशा x axis पे प्लॉट करते हैं. Dilatation of cervix is always plotted on the y-axis and our or the time will plot on the x-axis. Okay. Now, how to plot the dilatation?
डायलिटेशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो वी विल प्लॉट बाय मार्किंग दी क्रॉस, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे? इस क्रॉस से क्रॉस मार्क करेंगे और हम डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है, टू प्लॉट दी डायलिटेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज plotting is only done for the active phase. In this modified WHO partogram, we will always do the plotting for the active phase, never for the latent phase. Okay, इसमें आपको latent phase की प्लॉटिंग नहीं करनी है और सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ही प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में भी एक्टिव फेज, ठीक। अब इन मॉडिफाइड पार्टोग्राम प्लॉटिंग इज ओनली डन फॉर द एक्टिव फेज. So how to plot the dilatation? So let's see. If we are taking one example that I am going to do plotting only if my patient is 4 centimeter dilate, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं कब प्लॉटिंग करूँगी? जब मेरा पेशेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है. यस, फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट कम टू मी एट 5 PM, ठीक है। अब ये जो बिग बॉक्स है, ये जो बड़ा बॉक्स है, ये 1 आवर का होता है और स्मॉल बॉक्सेस हमेशा 30 मिनट्स के होते हैं, हमेशा 30 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड. सो अ पेशेंट कम टू मी एट 5 PM विथ 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन. आई डू हर per vaginal examination at 8 PM and now she is 9 centimeter dilated. So how to plot? एक पेशेंट आई 5 बजे आई है, मैंने उसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन 8 बजे किया है और वो क्या है? अब 9 सेंटीमीटर डायलेटेड मुझे मिली है, ठीक है। सो हाउ टू प्लॉट इट? लेट्स सी हियर. इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरी पेशेंट आई है 5 बजे 5 PM पर, यस, और 5 PM के बाद मैंने उसको क्या किया है? 8 PM पर उसकी पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया है और तब वो मुझे मिली है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM एंड 9 PM, ठीक। 8 PM पे मैंने जब उसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पर वो मुझे मिली 9 सेंटीमीटर डायलेटेड. यस, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है. आई विल प्लॉट लाइक दिस. 8 PM पर मैंने उसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया है तो ये मुझे यहाँ पर मिली है. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? एक क्रॉस बना दिया, ठीक. और जब वो आई थी तब वो मुझे कितनी मिली थी? 4 सेंटीमीटर डायलेटेड मिली थी, ठीक है. अब मैं इस वाले क्रॉस को इस वाले क्रॉस से कनेक्ट कर दूंगी, राइट. कनेक्ट किया. अब कनेक्ट करने के बाद अब मैं देखती हूँ कि प्रोग्रेस कितनी हुई है. इफ़ इट इज़ नॉर्मल और आई हैव टू टेक एक्शन और आई हैव टू रेफर दी पेशेंट. यस, सो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं? सी, इफ़ the progress of the patient is towards the left of the alert line. अगर alert line के left में है, if the progress of the patient is towards the left, अगर left में है progress, ठीक है, towards the left of the alert line, so it means that the progress of the patient is absolutely fine. The progress of the patient is absolutely normal. ठीक है, it is normal. It is normal. ठीक है. अगर now if the progress of the patient is towards the right of the alert line, किस साइड में है? right साइड में. Towards the right of the alert line. अलर्ट लाइन के राइट साइड में, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द अलर्ट लाइन. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू अलर्ट नाउ. नाउ इफ यू वांट टू टेक एनी एक्शन, इफ यू वांट टू रेफर द पेशेंट ऑन हायर सेंटर, डू इट. ठीक है. सो व्हाट इट विल से? इट विल से नीड टू बी अलर्ट. यहाँ पर हमें क्या है?
नीड टू बी अलर्ट की ज़रूरत है, नीड टू बी अलर्ट मीन्स अगर हम पेशेंट को रेफ़र करना चाहते हैं रेफ़र करेंगे, अगर हमें कोई और एक्शन लेना है देन वी हैव टू वेरी अलर्ट फॉर द पेशेंट. नेक्स्ट, इफ द प्रोग्रेस टच द एक्शन लाइन. अब ये क्या है, हमारी एक्शन लाइन है. इफ द प्रोग्रेस इज टच द एक्शन लाइन और राइट टू द एक्शन लाइन. ठीक है, या तो टच कर रही है एक्शन लाइन को या फिर टुवर्ड्स द राइट है एक्शन लाइन के जो प्रोग्रेस हमारी आ रही है. इफ इट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्शन लाइन, दैट मीन्स वी हैव टू टेक एक्शन नाउ. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्शन लेना है. और एक्शन हम क्या ले सकते हैं, वी कैन डू द artificial rupture of membrane, we can augment the labor with the help of the oxytocin by giving the oxytocin to the patient, or we can plan the cesarean section according to the condition of the patient or which is suitable for the patient. ठीक है, so if the progress is towards the left of the alert line, it is absolutely fine. If it is right towards the alert line, we have to be very alert, and if it is right to the action line, then we have to take the action. Okay, I hope you understood up to here. Okay, now the descent of the head. अब हम descent of the head कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो descent of the head is marked by the small zero. स्मॉल जीरो से हम इसको मार्क करते हैं एंड इट कैन बी चेक. अब डिसेंट ऑफ हेड हम कैसे चेक कर सकते हैं, पर एब्डोमिनली भी चेक कर सकते हैं और पर वजाइनली भी चेक कर सकते हैं बाय द वजाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो पर एब्डोमिनली हम कैसे चेक करते हैं, ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिस वी विल कीप आर ऑल दी 4 fingers and we will assess that the fifth palpable, either it could be fifth palpable, the whole head is palpable above the symphysis pubis. fifth palpable का मतलब क्या है कि the whole head is above the symphysis pubis. fourth palpable है, 3 palpable है, 2 palpable है या 1. मीन्स हमारी फिंगर्स के अकॉर्डिंग कि चारों फिंगर्स अगर हमें फील हो रहा है, चारों फिंगर्स हेड 4th फिंगर तक, तो दिस इज 5th palpable. देन 4th पे हो रहा है तो 4th palpable है. सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आपको हेड कितना फील हो रहा है. ठीक है, और पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करते हैं, बाय द स्टेशन. ठीक है, 0 स्टेशन पर हेड है विद दिस इस्चियल स्पाइन, 0 स्टेशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है. ठीक है, लाइकवाइज वी विल असेस द डिसेंट ऑफ द हेड एंड वी विल प्लॉट इट बाय मार्किंग द 0. स्मॉल 0 से हम इसको प्लॉट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस. कॉन्ट्रैक्शंस हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो लेट्स सी हियर कि कॉन्ट्रैक्शंस हमको कैसे प्लॉट करने हैं. कॉन्ट्रैक्शंस में बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज़ कि कॉन्ट्रैक्शंस हम कैसे काउंट करते हैं पर 10 मिनट्स. कॉन्ट्रैक्शंस हमें कैसे काउंट करते हैं, पर 10 मिनट्स पर काउंट करने हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आर प्लॉटेड आफ्टर एवरी 30 मिनट्स. ये जो बॉक्स है इट इज़ ऑल्सो 30 मिनट्स, रिप्रेजेंटिंग 30 मिनट्स. ठीक है, 30 मिनट्स का बॉक्स है. एक बॉक्स का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्शन. 1 बॉक्स मीन्स 1 कॉन्ट्रैक्शन. One box means 1 contraction. Okay, so in what manner, now the question is arising here that in what manner we will plot the contractions, okay, and how they are denoted. So हम कैसे plot करेंगे contractions को, so and how to measure the contractions को measure कैसे करेंगे. ठीक, there are 2 different questions, that in what manner we will plot the contractions and how to measure the contractions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं how to measure the contractions. तो contractions हम कैसे measure करते हैं, we will put you will keep your hand on the fundus of the uterus and contractions को आप feel करेंगे. ठीक है, if the contractions are lasting more than 20 seconds. ठीक है, if the contraction
is last for less than 20 सेकेंड, ठीक है, लेस देन 20 सेकेंड्स, लेस देन 20 सेकेंड के लिए है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कितने आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कितने आए हैं, देन इट इज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये लेस देन 20 सेकेंड्स के लिए रह जाता है कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं, विद द डॉटेड बॉक्स, विद द डॉटेड बॉक्स, ठीक है। मीन्स if the contraction lasts for 20 seconds, it is called as the mild contractions, and we will plot it by represent it by the dotted box. Okay, next, if the contraction is lasts for 20 to 40 seconds, then it is the moderate contraction, ठीक है। if the contraction lasts for 20 to 40 seconds, 20 to 40 seconds होता है, तब हम इसको बोलते हैं moderate contraction, moderate contraction, and we will represent it by the oblique linings, by the oblique lining, ठीक है। हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, oblique line के थ्रू, ऐसे, like this, ठीक है। Okay, and if the contraction is last for more than 40 seconds, then we will said that it is the good contraction, and it will be plotted by the solid filling, ठीक है। so if the contraction lasts for more than 40 seconds, more than 40 seconds, so it is good contraction, it is good contraction, and we will represent it by the solid filling, by the solid filling, ठीक है। इसको हम ऐसे solidly fill करते हैं, ठीक है, complete filling करते हैं, solid filling, ठीक। it is visible to all, yes। so mild contractions को हम डॉटेड से प्लॉट करेंगे, मॉडरेट को हम लाइनिंग से प्लॉट करेंगे, एंड गुड कॉन्ट्रैक्शंस जो है, इफ इट इज लास्ट मोर देन 40 सेकेंड्स, वी विल प्लॉट इट विद द सॉलिड फिलिंग, ओके, यस। नाउ अब हम इसमें प्लॉट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, यस। तो यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल मेरी पेशेंट जो आई थी 9 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, अब उसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्शंस हम कितने ड्यूरेशन के लिए चेक करेंगे, 10 मिनट्स के लिए चेक करेंगे। अब उसको 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं, एंड दे आर लास्ट फॉर द 20 to 40 सेकेंड्स। 20 to 40 सेकेंड्स आए हैं, तो 20 to 40 सेकेंड्स में हम कैसे फिल करते हैं, विद दी लाइनिंग, ठीक है। तो 3 कॉन्ट्रैक्शंस आए इन 10 मिनट्स, 3 कॉन्ट्रैक्शंस आए, तो 1 2 एंड 3 मैंने फिल कर दिया। एक बॉक्स का मतलब 1 कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड का मतलब 2 बॉक्स का मतलब 2 कॉन्ट्रैक्शन, एंड 3 बॉक्सेस का मतलब है 3 कॉन्ट्रैक्शंस। अब मैंने हाफ एन आवर के बाद में फिर से उसको चेक किया, फिर से कॉन्ट्रैक्शंस आए, एंड दे आर लास्टिंग फॉर दी लेस देन 20 सेकेंड्स, और 2 कॉन्ट्रैक्शंस ही आए हैं। तो मैं इसको कैसे फिल करूँगी, यस, विद दी डॉट्स, विद दी डॉट्स, ठीक। अभी उसको कितने कॉन्ट्रैक्शंस आए, 2 कॉन्ट्रैक्शंस आए, एंड दे आर लास्ट फॉर लेस देन 20 सेकेंड्स। तो मैंने इसको कैसे फिल किया है, डॉटेड से फिल किया है। सो अंडरस्टूड हाउ टू फिल दी कॉन्ट्रैक्शंस, हाउ टू प्लॉट दी कॉन्ट्रैक्शंस इन दी पार्टोग्राम। नेक्स्ट इज दी मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी आपने IV फ्लूइड्स में पेशेंट को दिए हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। मीन्स 500 ml RL आपने दिया है, ठीक है, 500 ml RL आपने दिया है, देन यू विल
मेंशन हियर 500 ml RL। ठीक है, जो भी IV फ्लूइड्स आपने दिए वो आप फिल कर देंगे। कोई भी आपने ड्रग्स पेशेंट को दी हैं तो ड्रग्स आप दे देंगे लाइक 2 यूनिट सिंटो, 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन आपने दिया है तो 2 यूनिट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, विद दी ड्रॉप पर मिनट। ओके, नेक्स्ट इज दी पल्स। सो पल्स यहाँ पे मदर की पल्स हम चेक करेंगे एंड पल्स और बीपी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इन दिस पार्ट। तो बीपी हम कैसे मेंशन करेंगे, लाइक अगर मदर का डायस्टोलिक बीपी आपको मिल रहा है एट 8 AM पर, 8 PM पर आपको मिला है डायस्टोलिक 90 mm of Hg एंड सिस्टोलिक आपको मिला है 120 mm of Hg, then you will join this and make this arrow like this. Okay, so this is how to plot the blood pressure of the mother. Then you will also plot the temperature of the mother. temperature को आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 degree Fahrenheit, likewise you will mention here, and also you will plot the urine. urine में protein आप mention कर सकते हैं, dot tone and volume of the protein. Okay, so how we can plot the whole partograph. ठीक है, I hope you understood very well with the stages of the labor and how to plot the descent and cervical dilatation, fetal heart rate, contractions, any medications, any pulse and ब्लड प्रेशर। सो ये जो पार्टोग्राफ है ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में द प्रोसेस ऑफ द लेबर इज नॉर्मल और द एबनॉर्मल एंड एट व्हाट टाइम वी हैव टू टेक द एक्शन to reduce the morbidity, intramaternal morbidity or mortality rate. Thank you very much.